Phase 1, 13 ACs, date of notification 6th November. Shall I go further? You not heard? Total 13 phase 1, date of notification 6th November 2019. Have you heard now? Last date of making nomination 13 November. Date of scrutiny 14 November. Last date of withdrawal 16 November. Date of poll 30th November. Date of counting 23rd December. There were a lot of sensitivities in our mind that in Jharkhand there being a lot of population from the Christian community, we should finish before the Christmas. So now this date of counting 23rd December, this will be common to all the 5 phases, needless to say. Shall I repeat any? Neeraj? Neeraj? Sure? Yes, sir. Okay. Sorry? 30th November. 30th November. 30th. 30th. Peace. 6th November. I'll read out again. But it seems that everybody is not heard properly, or maybe I have not spoken properly. First phase, 13 assemblies, constituencies. Date of issue of notification, 6th November. Last date of making nomination, 13 November. Date of scrutiny, 14 November. Last date of withdrawal, 16th November. Date of poll, 30th November. Last date of counting, 23rd December. Shall I go to the next phase? Yes, sir. Phase 2, 20 assembly constituencies. Date of issue of notification, 11th November. Last date of making nomination, 18th November. Date of scrutiny, 19th November. Last date of withdrawal, 21st November. Last date of poll, 7th December. And date of counting, same, 23rd December. Shall I go to next? Yes, sir. Third phase. 17 assembly constituencies. Notification 16th November. Last date of making nominations 25th November. Withdrawal 28th November. Date of poll 12th December. Date of poll 12th December. And date of counting 23rd December. Is it okay? Yes, sir. Every side? Phase 3. Phase 4. 15 assembly constituencies. Date of notification 22nd November. Last date of making nominations 29th November. Date of scrutiny 30th November. Last date of withdrawal 2nd December. Date of poll 16th December. Date of counting 23rd December. Shall we go to the next? Shall we go to the next? Yes, sir. I think there's some problem here. Sir, fourth Sorry? fourth 15. It's okay? Fifth. 16 ACs. Date of issue of notification
26th November. Last date of making nomination 3rd December. Date of scrutiny 4th December. Last date of withdrawal 6th December. Date of poll 20th December. 20. Date of counting same 23rd December. In any case, you will have not only the dates, but you will have the number of ACs, everything with you on WhatsApp, right? Now, the questions. I think Shefali ji, you will be taking over. At least you think you will be taking over. So they have taken over already. Huh. सर वहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने ये प्रधानमंत्री खासकर के ये पार्टियाँ और कांग्रेस उन्होंने चुनाव की जब टीम थी तो उन्होंने कहा था कि कम से कम चरण में चुनाव कराया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब ज़्यादा चरण में चुनाव होते हैं तो बीजेपी का गलत इस्तेमाल करती है, मतलब न केवल प्रचार का बल्कि जो प्रचार का प्रोपेगेंडा देकर उसको लेकर के, और उन्होंने आपत्ति जताई कि कम से कम चरण में चुनाव हो। जब देखिए कई बार ये बातें हो चुकी हैं, दोबारा कर देता हूँ कि चुनाव के चरण ओवरऑल सेंट्रल फोर्सेस की एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है एंड देयर मूवमेंट। झारखंड में 2009 में 5 चरण में चुनाव हुए। झारखंड में 2014 में 5 फेज में चुनाव हुए और अब भी झारखंड में विधानसभा में 5 फेज में चुनाव हो रहे हैं। इसलिए कोई ऐसा नहीं कि आपको अपवाद हो रहा है। जी नेक्स्ट। सर, इससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर ये बात कही थी कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो और अब झारखंड, कुछ दिनों के बाद दिल्ली, क्या चारों राज्यों में एक साथ चुनाव कराने की पहल चुनाव आयोग नहीं कर सकता? देखिए, आज से 1 महीने पहले एक कंप्लीटली फैक्चुअली इनकरेक्ट न्यूज़ आ गई थी। हमने उसका खास प्रतिवाद भी नहीं किया है, खास के आम प्रतिवाद भी नहीं किया है कि जी केंद्र सरकार के दबाव के अंडर इलेक्शन कमीशन दिल्ली का चुनाव पहले कराने की सोच रहा है झारखंड के साथ। अब वो किस सज्जनिया देवी ने दी थी तो आपको पता होगा। इट हैड नो बेसिस एट ऑल। उससे पहले ज्योति साहब के टाइम पे जब मैं नया नया इलेक्शन कमीशन में आया था, मुझे अभी तक याद है कि चुनाव हिमाचल गुजरात का वाली बात चल रही थी। गुजरात के चीफ सेक्रेटरी के लंबे चौड़े 2 लेटर्स आए, फैक्स आए सुबह तकरीबन 10:30-11 बजे, और ज्योति साहब ने उसी टाइम पे रावत साहब को बुलाया और मुझे बुलाया और हमने इस रूम में बैठ के उन लेटर्स का देखा, उनका वो देखा कि क्या उनकी ग्रेविटी है, और वहाँ के सीईओ से बात की। सीईओ ने उनको बैकअप किया हुआ था और उसी वक्त तय हुआ कि नहीं, इनको थोड़ा सा स्टैगर किया जाए बिकॉज ऑफ द लोकल सिचुएशन ऑफ वेदर। और इसी रूम में ज़्यादा लोग थे, इतना हंगामा मचा जैसे कोई ज्योति साहब ने और सब ने हमने मिल के कोई ऐसा संगीन अपराध कर दिया हो जिसकी सज़ा केवल सज़ा मौत टाइप ही है। तो इलेक्शन कमिश्नर देखिए, आदमी को आदत होनी चाहिए कि वी शुड हैव स्लाइटली रफ स्किन बिकॉज आइदर वे वी आर इन द आईज ऑफ द स्टॉर्म। और सेकंड बात आपकी आई जो पीएम के अनाउंसमेंट वाली आपने की। पीएम ने जो अपने एक्चुअली पीएम से पहले इसी बात को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने तो इलेक्शन कमीशन ने झारखंड में चुनावी बिगुल का आगाज कर दिया है। चुनाव की तारीख आपको बता देते हैं, 5 चरणों में होने वाला है यहाँ पर चुनाव 81 सीटों के लिए, और नतीजे आएंगे 23 दिसंबर को। पहला चरण होगा 30 नवंबर को, दूसरा चरण 7 दिसंबर को, तीसरा चरण होगा 12 दिसंबर को और चौथा चरण होगा 16 दिसंबर को, 5वां चरण 20 दिसंबर को। तो झारखंड में रघुवर दास की सरकार की अब अग्नि परीक्षा। पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने
पूरा टेन्योर झारखंड में पूरा किया है। ऐसे में कई सारी चुनौतियों के साथ रघुवर दास की पार्टी और उनका लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा ये चुनाव, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से 5 चरणों में ये चुनाव खत्म होगा। 23 दिसंबर को नतीजे होंगे और किन किन सीटों पर सबकी निगाह रहेगी वो भी आपको बताएं। उससे पहले चरण में 13 सीटों पर, दूसरे में 20, तीसरे में 17 और चौथे में 15 सीटों पर और 5वें चरण में 16 सीटों पर होगी वोटिंग। झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। हमारे साथ झारखंड के कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह हैं। आरपीएन सिंह जी, पिछली बार की तरह इस बार भी 5 चरण में चुनाव हो रहा है। 23 दिसंबर को मतगणना होने वाली। पार्टी आपकी कितनी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले काफी हलचल हुई आपकी पार्टी में, काफी लोगों ने छोड़ा पार्टी को? देखिए, साफ तौर से हम स्वागत करते हैं कि झारखंड में चुनाव घोषित हो गए हैं। अफसोस की बात है, जब इलेक्शन कमीशन को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था तो साफ तौर पे कहा था कि झारखंड में चुनाव एक फेज में होने चाहिए। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए 288 सीटों पर, तो वहाँ उन्होंने एक चरण में किया। हरियाणा में 90 सीट हैं, वहाँ भी उन्होंने एक फेज में किया। हमने 5 भारतीय जनता पार्टी लगातार कहते आई कि 5 फेज़ों में चुनाव होना चाहिए। हम समझते थे कि ये हमने जो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को दी थी कि एक फेज़ में झारखंड का चुनाव होना चाहिए। अभी हमने सुना कि माननीय जो हमारे इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा नक्सल प्रभावित झारखंड है, पर वहाँ के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी तो साफ तौर से कहते आए हैं कि हमारे कार्यकाल में नक्सलवाद समाप्त हमने कर दिया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नक्सलवाद समाप्त हो चुका है और वहाँ बता रहे हैं कि नक्सलवाद की वजह से 5 फेज़ों में चुनाव हो रहा है। दिक्कत क्या हो रही है आरपीएन सिंह जी 5 फेज में? क्या आपत्ति क्या आप लोगों की? देखिए, 5 फेज़ों में चुनाव करके 13 सीटों पे 81 सीटें ही हैं। सरकार ऐसे चुनाव में इस तरह की प्रभावित करने का आशंका लोगों को रहती है। जब एक साथ चुनाव होते हैं तो इस तरह की कोई भी गड़बड़ी, और अकेला प्रांत है जहां पूरे देश में चुनाव हो रहा है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस को मूवमेंट करने के लिए भी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। एक सवाल यह है कि अभी आप एक तरफ रघुवर दास कहते हैं अब की बार 65 पार 65 प्लस का टारगेट उनका है, आपका भी गठबंधन ही तय नहीं है। शिबू सोरेन की पार्टी जो है, हेमंत सोरेन से आपकी बातचीत ही कुछ नहीं हो पाई, जेवीएम कुछ और कह रही है, तो बिखरा हुआ विपक्ष क्या आपको लगता है चुनौती कितनी देंगे? आपने तो बोल दिया भारतीय जनता पार्टी का, तो आप बताते नहीं उनके किसके साथ समझौता करेंगे। आजसू से करेंगे, जेडीएस से, जेडीयू से करेंगे, एलजेपी से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तो घर के अंदर अंतरकलह है। जो 5 साल ने उन्होंने ढाक के रखा था, आज तो वहाँ अंतरकलह होगा कि मुख्यमंत्री कौन झारखंड का बनेगा। हमारे जहाँ तक गठबंधन की बात है, आप इसकी चिंता न करिए। वैसे ही हमने हरियाणा में देखा 75 पार, 220 पार, सब पार। साफ तौर से मैं कह सकता हूँ झारखंड में रघुवर दास जी की सरकार 25 पार नहीं करेगी। मेरा आखिरी और छोटा सा सवाल है, क्रिस्प सवाल है, कितनी सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस? क्योंकि खबर ये आ रही थी कि अगर जेएमएम के साथ होता है तो 25 से 30 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमारी बातें जो हमारे गठबंधन के घटक दल हैं, उन सबसे साफ तौर से बात हो गई है और इसकी चिंता मत करिए कि हम इधर उधर हैं, सब पूरी बात हो गई है। इलेक्शन स्ट्रैटेजी टेलीविजन चैनलों पे नहीं खोली जाती है। जब हमें अनुकूल समय लगेगा उस समय इसका हम खुलासा अवश्य करेंगे। आरपीएन सिंह कह रहे थे कि रघुवर दास 25 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे इस बार और पूरी तरह से इनको उम्मीद है कि गठबंधन के साथ ये सत्ता में वापस आएंगे। कैमरामैन जयपाल सिंह रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब इस सब के बीच बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल इसके चरण इतने क्यों रखे गए, जिसकी बात चुनाव आयोग ने क्लियर भी की है। पिछली बार ये 4 चरणों में चुनाव हुए थे और इस बार इसको 5 चरण में रखा गया है। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, कुल मिलाकर अब चरण को लेकर सियासत शुरू है कि आखिरकार इतने चरणों में क्यों कराए जा रहे हैं चुनाव? बिल्कुल, देखिए, चुनाव को लेकर पहले ही यह कहा गया था तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि जितने कम चरण में चुनाव हो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन 5 चरणों में चुनाव का ऐलान हो गया है। हमारे साथ राजीव रंजन जी मौजूद हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। ये बताइए, 5 चरणों में चुनाव का ऐलान हो गया है, क्या आप लोग की तरफ से तैयारी है? और रघुवर दास ने साफ तौर पर यह कहा है कि अब की बार 65 पार। देखिए, एक राजनीतिक दल के तौर पर उन्हें अधिकार है, वो लक्ष्य अपना निर्धारित कर सकते हैं। हम अपनी ओर से झारखंड के
कई विधानसभा क्षेत्रों में लंबे समय से काम करते रहे हैं और जो हमारा काम है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी उपस्थिति प्रभावी होगी और सरकार बनाने और सरकार के कार्यक्रमों को प्रभावित करने में हमारे दल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो, इसको सुनिश्चित करने के साथ साथ एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो एलिजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से राज्यों में मत प्रतिशत और सीटों को प्राप्त करना आवश्यक है और उस दिशा में झारखंड का चुनाव हम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो सरकार में आने के लिए चुनाव लड़ेंगे या फिर मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ेंगे वहाँ पर? क्या जेडीयू और बीजेपी साथ जाएगी चुनाव मैदान में? देखिए, हमने बेहतर काम किया है, जनता का आशीर्वाद हमें अवश्य मिलेगा। जो नीतीश कुमार जी का जो बिहार मॉडल है शासन का, शराबबंदी, इन तमाम चीज़ों ने काफ़ी हद तक बिहार में जो वातावरण बनाया उसका लाभ झारखंड को भी होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो स्थितियां हैं उसमें हम कई सीटों पर चुनाव जीत सकते हैं, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। और साथ ही साथ हमारी कोशिश है कि ज़्यादातर निर्वाचन क्षेत्रों में हम प्रभावी उपस्थिति दर्ज कर सकें। कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू? अभी तो हम लोगों ने अकेले अधिकतम सीटों पर लड़ने का निर्णय लिया है और अब तारीखों का ऐलान हो गया है। अब इसलिए वहाँ के लिए जो पार्टी के लिए विधिवत वहाँ प्रभारी हमारे रामसेवक सिंह हैं, राज्य सरकार के मंत्री हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच मंत्रणा के पश्चात सीटों की संख्या का ऐलान हो जाएगा। तो सीटों का ऐलान जो है वो कुछ दिन बाद होगा जब पार्टी की बैठक होगी और उसके बाद यह तय होगा कि जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन आज जिस तरह से चुनाव का ऐलान हुआ है इससे यह साफ नज़र आ रहा है कि जो जेडीयू है और तमाम पार्टियां हैं वो अब झारखंड की रुख करेगी और चुनाव मैदान में अब उतरेगी, चुनाव प्रचार करेगी। लेकिन जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह जब पार्टी की बैठक होगी उसके बाद तय होगा। अर्पिता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन। जिस तरीके से ये पूरा देखने को मिल रहा है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि वो किस तरीके से जेडीयू आगे की रणनीति तय करेगी, क्योंकि अब चुनावों की तारीखों पर तमाम दलों की नजर थी कि आखिरकार तारीख क्या होती है। उसके बाद ही अपने पत्ते जो हैं ये राजनीतिक दल खोलते हुए नजर आएंगे। झारखंड के चुनाव की घोषणा हो गई और हमारे साथ हैं बीजेपी के झारखंड प्रभारी माथुर साहब। सर, जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं, एक चिंता तो बीजेपी के मन में होगी क्योंकि लोगों की कुछ नाराजगी देखने को मिली। देखिए, बीजेपी के मन में चिंता नहीं होती है। जो रिजल्ट्स आए हैं, जिनके जुम्मे वो काम था, वो विश्लेषण कर रहे होंगे क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन आप झारखंड की बात करिए, मैं झारखंड को पूर्ण विश्वास ही नहीं, मैं मेरे कार्यकर्ताओं के काम के आधार पर और मेरे केंद्र सरकार की योजना और प्रदेश सरकार की योजना के आधार पर कह रहा हूं कि पूर्ण बहुमत से 65 जो प्लस हमने दिया है वो निश्चित रूप से हम पार करने वाले हैं। सर, आप 65 प्लस की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है उसमें भी नई ऊर्जा आई है इन दो विधानसभा चुनाव में। भले ही वो हारे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अब पूरी ताकत के साथ और समझौते के साथ। अच्छा है, वो ऊर्जा चुनाव तक टिकी रहे और जब ऊर्जा सामने भी अच्छी होती है तो अगले वाले की भी ऊर्जा को ताकत का पता लगता है क्या है क्या नहीं। विपक्ष महागठबंधन बनाने की भी वहाँ तैयारी कर, स्वागत करेंगे हम, गठबंधन बने। वो देखिए, ये गठबंधन नहीं होता, ये स्वार्थ का गठबंधन होता है। खाली इसको हराना है, बीजेपी को हराना है, इसलिए एक जगह आ जाओ। वो चुनाव आते आते ही बिखर जाते हैं और ये आपने कई प्रदेशों में देखा है पिछली बार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के वहाँ सरकार है, आजसू पार्टी हमारे साथ है। हम आगे भी एनडीए के साथ आगे चुनाव में जाने वाले और हम इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते। हम तो बूथ तक हमारे कार्यकर्ता की जो मेहनत है, जो परिश्रम है और जो हमारी विकास कार्य है उनको लेके जनता के बीच में आ रहे हैं। और जो पिछले 4 महीनों से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रम का आधार पर मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 65 प्लस का जो नारा है उसको पीछे छोड़ करके आगे जाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।